इस दौरान 2 गोलियां इनकी टांग में लगी, मगर उन्होंने जख्मों की परवाह किए बगैर अपना मिशन जारी रखा। आप ये बताएं कि वो क्या जज्बा था और क्या एहसासात थे जिसके तहत जब आप उस पोजीशन में थे आपने कैसा महसूस किया और कैसे एक्ट किया? मैं चाहूँगा कि आप सारी आवाम के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको पता है कि हम एक ऐसे महाज पे थे जहाँ पे हमारे पूरे पाकिस्तान के जो अवाम थे वो हमारे साथ थे, और उनकी मदद से और उनके मोटिवेशन से हम फ़ौज जो है वो आगे बढ़ती गई। मैं अपने इलाके की अवाम की तरफ से, अपने सूबे की तरफ से, बल्कि पूरे पाकिस्तान की तरफ से दहशत गर्दों को ये एक पैगाम देना चाहता हूँ, इफ़ दे थिंक दे वुड स्पॉइल द पीस ऑफ द कंट्री देन सॉरी, दे आर strongly mistaken. Till the time we Pakistanis we are over here. Thank you. कैप्टन ज़िया, आपकी हाल ही में शादी भी हुई है, तो जानना चाहूँगा कि क्या अब आप वापस ज्वाइन कब तक करेंगे? मेरी लास्ट ईयर 2008 में निकाह हुआ था, एंड देयर आफ्टर आई गॉट इंजर्ड। उसके बाद अभी रिसेंटली बीइंग इन हॉस्पिटल I asked my parents, just go for my marriage. Let's set an example that even this we can do. On 9th of July, I had my marriage, being in hospital and yet admitted in CMH Pindi. وہ کہتے ہیں نا کہ مجاہدین کی زندگی بڑے ہی دلچسپ واقعوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور یہاں جہاں ہم سب ان کی کارناموں پہ فخر کر رہے ہیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آپ کی اہلیہ کا بھی چہرہ اس وقت فخر اور خوشی سے دگمگا رہا ہے۔ آپ سے جاننا چاہیں گے میم کہ کیا آپ کے احساسات تھے؟ آپ کی شادی ہمارے سامنے ہے کہ 9 جولائی 2009 کو ان کی غازی ہو کر واپس آنے کے بعد ہوئی ہے، تو اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس عظیم دھرتی جس نے ہمیں آزادی کی نعمت سے نوازا ہے، اس کی سربلندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو میرے ہسبینڈ نے اہم کردار ادا کیا، مجھے اس پہ فخر ہے۔ اور یہ جب انجرڈ بھی ہوئے، یہ بہت بہادر اور حوصلے والے ہیں، انہوں نے 20 ڈیز تک ہمیں انفارم ہی نہیں کیا، ہماری فیملیز کو نہیں پتا تھا کہ یہ انجرڈ ہوئے ہیں۔ آفٹر دیٹ جب ہمیں پتہ چلا، اور اس دوران ہماری شادی بھی ہوئی اور میری رخصتی ہو کے میں CMH پنڈی آئی ہوں، اور آج کل میں انہیں سرو کر رہی ہوں اور بہت خوشی محسوس کرتی ہوں، اور اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میں ایک غازی کی وائف ہوں، اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف ہم۔ بلکہ نہ صرف میں، میری فیملی، ان کی فیملی، ہم بلوچستان میں سب ان پہ بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں۔ پورا پاکستان ان پہ فخر محسوس کرتا ہے، پورا پاکستان۔ اور ہماری دعائیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے بہت خوشیاں دیکھیں، بہت ہی پرمسرت زندگی ساتھ گزاریں۔ بہت بہت شکریہ یہاں آنے کے لیے۔ کرنل طاہر مقصود نے 1982 میں 26 فرنٹیئر فورس رینجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا اور 1985 میں آرمی ایویشن کور میں شمولیت اختیار کی۔ سیاچن آپریشن میں ان کی ان خدمات کے اعتراف میں انہیں امتیازی سند سے نوازا گیا۔ پاکستان اور بیرون الممالک میں دوران تربیت فلائنگ ٹرافیز حاصل کی۔ اکتوبر 2007 کے زلزلے میں بیش بہا خدمات سر انجام دی۔ 2006 میں دہشت گردوں کے خلاف برسر پیکار ہوئے۔ فاٹا کے تمام آپریشن کے ایئر بیٹل کیپٹن اور بعد میں غازی بیس تردیلا میں بیس کمانڈ کیا۔ آپ کو پاک آرمی ایویشن کی تاریخ میں سب سے زیادہ آپریشن کرنے کا منفرد اعزاز بھی حاصل ہے۔ آپریشن راہ راست میں مشن لیڈر کی حیثیت سے وادی پوچار میں اسپیشل سروسز کے جوانوں کو لینڈ کیا۔ کرنل طاہر کو ان کی خدمات کے اعتراف میں ستارہ بصالت سے بھی نوازا گیا۔ ان کی یونٹ کو بھی 20 آپریشنل ایوارڈ عطا ہوئے، جو کہ ایک منفرد اعزاز ہے۔
पाकिस्तान आर्मी एविएशन एक मरतबा फिर महाज पर लब्बैक कह रही है, क्या कहेंगे आप? जब आर्मी की हाई कमान ने यह फैसला किया कि POCR वैली जो कि तालिबान का मजबूत गढ़ है उसकी चोटियों पर कब्जा किया जाए, तो पाकिस्तान आर्मी एविएशन पर यह जिम्मेदारी डाली गई कि वो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के कंप्लीट ब्रिगेड को वादी POCR की चोटियों पर उतारे। POCR वादी के ऊपर सिर्फ 3 ही लैंडिंग जोन थे जो कि इंतहाई खतरनाक थे। वो पिनिकल थे, उसके साथ साथ कन्फाइंड भी थे और स्लोपी भी थे, और 2 लैंडिंग जोन तो ऐसे थे कि जिन पे सिर्फ एक पहिया लगाकर जहाज जा सकता था और बाकी उसके 2 टायर हवा में मुअल्लक रहते थे। इसके लिए ख़ास महारत, तकनीक और दिलो गुर्दा चाहिए था जो कि पाकिस्तान आर्मी एविएशन के पायलट्स में मौजूद है। इस मिशन को कंडक्ट करने की जिम्मेदारी मेरे GOC मेजर जनरल तनवीरुल्लाह ने मुझे सौंपी। पाकिस्तान आर्मी का यह शेवा है कि उसके कमांडर हमेशा फ्रंट से लीड करते हैं, इसलिए MS-17 हेलीकॉप्टर जो कि POCR वैली में सबसे पहले दाखिल हुआ उसको मैं खुद उड़ा रहा था। लैंडिंग से कुछ देर पहले मेरे को पायलट मेजर ताहिर ने चीख कर मुझे बताया कि सर, दाएं तरफ से लैंडिंग वाली जगह से रॉकेट और गोलियां बरस रही हैं। अल्लाह ने हमारी मदद फरमाई और हम POCR वादी पर लैंड कर गए। कर्नल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही किस्से, ऐसे ही कारनामे हमारे दिलों को गरमा देते हैं और हमें ये यकीन हो जाता है कि माशाअल्लाह हमारे मुहाफिज हमारी हिफाजत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। ग्रुप कैप्टन आमिर मसूद ने 1988 में पाकिस्तान एयरफोर्स में बतौर पायलट कमीशन हासिल किया। अपनी सर्विस के आगाज से अब तक वो फाइटर पायलट की हैसियत से अपने फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। आप F-16 तैयारों के एक एलीट स्क्वाड्रन और एक विंग की कमांड कर चुके हैं। ऑपरेशन राह रास्त में उन्हें पाक फौज की मुआविनत करने का मौका मिला। ये कार्रवाइयां पाक फौज और पाक फजाइया की बाहमी इश्तराक की बेहतरीन मिसाल हैं। ग्रुप कैप्टन आमिर मसूद की आला पेशेवराना खिदमात के इतराफ में हुकूमत पाकिस्तान उन्हें तमग़े इम्तियाज मिलिट्री और सितारा बसालत से नवाज चुकी है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि हमने पढ़ा है, सुना है, लोगों से बहुत दफ़ा इस किस्से का जिक्र हुआ है कि तमाम ऑपरेशंस में उसमें एक कलीदी किरदार रहता है पाक फ़िज़ाइया का, स्पेशली ऑपरेशन राह रास्त में भी। आप इस रोल पे, इस किरदार पे ज़रा रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ इन शहीदों के लवाहिकीन के साथ बैठ के, क्योंकि बेशक शहीदों के लहू से जो ज़मीन सैराब होती है, बड़ी ज़रख़ेज़ होती है, बड़ी शादाब होती है। पाक फ़िज़ाइया हमेशा से मुल्क के लिए फ़ख्र का एक निशान रही है। हर मुश्किल औकात में पाक फ़िज़ाइया ने अपनी कौम की पुकार पे लब्बैक कहा और उसे कभी मायूस नहीं किया। और मेरा ख़्याल में, मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में भी ये कभी इस कौम को मायूस नहीं करेगी। जहाँ तक ऑपरेशन राह रास्त का ताल्लुक़ है, मेरा ख़्याल में पाक फ़ज़ाइया और आर्मी के दरमियान ये मुश्तरका ऑपरेशन की एक बेहतरीन मिसाल है। जो जॉइंटनेस, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और अंडरस्टैंडिंग इन ऑपरेशंस के दरमियान देखी गई, उसकी मिसाल शायद तारीख़ में बहुत कम मिलती है। और इसी जॉइंटनेस और सिनर्जी का असर था कि हमने बहुत सारे कामयाबियां बहुत कम वक्त में हासिल की। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि पाक फ़ज़ाइया ने इन ऑपरेशंस के दौरान इस बात का अज़म किया हुआ था कि हम किसी किस्म का कोलैटरल डैमेज नहीं करेंगे। और हमने अपने ऑपरेशंस के दौरान किसी आबादी, मासूम शहरी को निशाना नहीं बनाना और उसको अवॉइड करना है और उसको महफूज रखना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मिशन में 100% कामयाब रहे।